morning students. Welcome to Sagar College. So in the last class I was discussing about the factors affecting adsorption of gases on solids. I had already discussed two factors, that is nature and surface area of the adsorbent and nature of the adsorbent. ताहले surface area जते when the surface area of the adsorbent will be more volume of gas will be adsorbed on the surface of the solid, so the magnitude of adsorption will be more. And in case of your adsorbent, the gases, adsorbent means here adsorbent are the gases, so gases which are highly soluble or easily liquefiable, highly soluble in water or easily liquefiable, they are readily adsorbed on the surface of the solid. And in case of your chemisorption, the gases which chemically react with the adsorbent, they are readily adsorbed on the surface of the solid. Then third factor comes temperature. You know, I had already told you adsorption is an exothermic process, so heat energy is released in this process. तेणु जो प्रोसेस टा एक्सोथर्मिक थाए आमे से प्रोसेस टा टेम्परेचर इंक्रीज कले फेवरेबल हबो नाही अकॉर्डिंग टू तमरो ली-चटालियास प्रिंसिपल. तेणु जेहेतु एटी ऑलरेडी हीट एनर्जी बाहरुची, सो बिकॉज इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, increase of temperature does not favor adsorption, it decreases the extent of adsorption. Temperature आमे जेते बढ़ेइबा extent of adsorption, that means adsorption of gases on the surface of solid will decrease. हैला ताले लिखि दियो H adsorption is an exothermic process the extent or magnitude of adsorption decreases when temperature is increased or at high temperature. If it would be एटा जदि गोटे एंडोथर्मिक प्रोसेस होता ताहले हीट रिक्वायर करूँ प्रोसेस से बेले आम टेम्परेचर बढ़ेले एडजॉर्प्शन प्रोसेस टा फेवरेबल होता बिकॉज इट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, हीट एनर्जी इज ऑलरेडी रिलीज. तेणु ए केस रे टेम्परेचर बढ़ेले एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन टा कौन हम कम है. फोर्थ प्रेशर. ताले प्रेशर कौन आम जो गैस उपर प्रेशर टा बढ़ई देबा ताले मोर अमाउंट ऑफ गैस विल बी एडजॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड, सो द मैग्नीट्यूड और एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन विल इंक्रीज. दैट इज एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. है when pressure is increased, more amount of gases will be adsorbed on the surface of the solid, so magnitude of or extent of adsorption will also increase. है when pressure is increased, more amount of gases. On the more amount of gases will be adsorbed on the surface of the solid, and so the magnitude or extent of adsorption will increase.
ताले टेम्परेचर हाई जिते टेम्परेचर बढ़ेबा एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन विल डिक्रीज एंड व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन विल इंक्रीज है. So these are the main four factors: nature of the adsorbent, nature and surface area of the adsorbent, nature of the adsorbent, temperature, pressure, and fifth factor is activation of the adsorbent. This is the fifth factor you are affecting the adsorption of gases on solids. है ताले fifth factor लिखी दियो. Activation of adsorbent. Hello. Activation of adsorbent. This is the fifth factor affecting your adsorption process. So activation of adsorbent means increasing the adsorbing power of the adsorbent, that is called activation of adsorbent. So it means activation of adsorbent is increasing the adsorbing power of the adsorbent. है ताले एडजॉर्बेंट रो एडजॉर्बिंग पावर को इंक्रीज करिवार प्रोसेस ताको कहंती एक्टिवेशन ऑफ एडजॉर्बेंट. है ताले एडजॉर्बेंट रो जो एडजॉर्बिंग पावर टाको आमे केमिति इंक्रीज करि पारिबा. मेनली थ्री वेज रे वी कैन इंक्रीज द एडजॉर्बिंग पावर ऑफ एन एडजॉर्बेंट, दैट इज सॉलिड. व्हाट आर द थ्री वेज? गोटे है मेकानिकल रबिंग, सरफेस टाको रब करिकी घसीकी आमे जेते रब करि परिबा और पोरस जेते रफ हम सरफेसटा सेते एडजॉर्प्शनटा मोर हम. बुझी पारछ ना? जेते सरफेसटा कौन हम रफ हम आ पोरस थिबो गैस गुड़ाक आसिकी कौन हे से पोर्स रे आसिकी एडजॉर्ब हेबे. तेणु सरफेसटा जेते रफ हम आ जेते पोरस हम, पोरस मीन्स कंटेनिंग पोर्स, छिद्र छोट छोट पोर जेते रहिबो गैस गुड़ाक आसिकी रेडिली एब्जॉर्ब हेबे. सबु बेले रफ सरफेस रे एडजॉर्प्शनटा अधिका हुए हैला. तेणु आमर फास्ट हैला मेकानिकल रबिंग, दैट मीन्स by making the surface rough and porous. That is one way of your activating the adsorbent. बुझी पारलो? सरफेस टाको आमे जेते रफ करिबा, रफ आपड़ा खाबड़ा जेते करिबा सेते अनबैलेंस फोर्स अधिका रहिबो, सेते तमरो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन ता मैग्नीट्यूड ऑफ एडजॉर्प्शन ता अधिका हबो हैला. ताहले फास्ट लेखो the adsorbent can be activated by तमें देखी तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री गोटे गोटे लिखाई कैटालिस्ट एक्टिवेटेड एल्युमिनियम, फाइनली डिवाइडेड प्लाटिनम. बुझी पारछ ना? से गुड़ाक सब बर्तमान कहीं जानी पारछ तो फाइनली डिवाइडेड माने बेटर एडजॉर्प्शन पाई तार सरफेस एरिया बढ़ाइबा पाई ताको फाइनली डिवाइड करागला. एक्टिवेट माने जेकोसी तीनटा ऊपर तार सरफेस को रफ कराइथिबो बा सुपरहीटेड स्टीम अछि बा फाइनली डिवाइडेड फॉर्म जहाँ हेले गोटे करा हिची. काहे करा होची एक्टिवेटेड कैटालिस्ट को ना टू इंक्रीज इट्स एडजॉर्बिंग पावर, तार एडजॉर्प्शन पावर टाको बढ़ाइबा पाई हैला. ताले activated by first है mechanical rubbing है घसीबा रब करिबा और making the surface of the adsorbent
रफ एंड पोरस है सरफेसटा को जेते रफ कर तुमर एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन मैग्नीट्यूड ऑफ एब्जॉर्प्शन सेते अधिका हम है बुझिपार यहाँ गोटे मेथड है मेकानिकल रबिंग और मेकिंग द सरफेस ऑफ द एब्जॉर्बेंट रफ एंड पोरस पोरस मीन्स पोरस है से सब्सटेंस जी कंटेन्स पोर्स पोर्स माने कौन छिद्र है छोट छोट सब पोर्स देन सेकेंड है बाय यूजिंग फाइनली डिवाइडेड फॉर्म ऑफ द एब्जॉर्बेंट्स है जिते फाइनली डिवाइड करदे एब्जॉर्बेंट रो कौन हम सरफेस एरिया सेते बढ़ी जीवो तेणु मैग्नीट्यूड ऑफ एब्जॉर्प्शन सेते बढ़ी जीवो दिस थिंग ऑलरेडी आई हैड डिस्कस्ड है आम ऑलरेडी मु डिस्कशन कर सारी जे आम फाइनली डिवाइड जिते करदे सरफेस एरिया इंक्रीज कर सो व्हेन सरफेस एरिया इज इंक्रीज एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज ऑल्सो इंक्रीज्ड है देन थर्ड इज by passing superheated steam on adsorbent on surface of adsorbent है सुपर हीटेड स्टीम पास करिवो ऑन सरफेस ऑफ एब्जॉर्बेंट सुपर हीटेड स्टीम बुझीपार हाई टेम्परेचर स्टीमटा ताले सपोज आमर एब्जॉर्प्शन बहुत प्रैक्टिकल एप्लिकेशन अच्छी ना तेणु आम गोटे पर्टिकुलर गैस को सपोज गोटे पर्टिकुलर सॉलिड सरफेस रे एब्जॉर्ब करिया को चाहूचे से केस रे जदि से सॉलिड रे अननेसेसरी गैसेस जो गुड़ा तमें चाहून जदि प्रीवियसली एब्जॉर्ब होईची ताले आमे सुपर हीटेड स्टीम पास करदेले से जो अननेसेसरी गैस गुड़ा को एब्जॉर्ब होईथिले दे विल लीव द सरफेस से माने सरफेस लीव करके कहीं ना आमे सुपर हीटेड स्टीम पास कले से मानकर काइनेटिक एनर्जी बढ़ी गला से माने सरफेस लीव करके पळेइले तापरे तमे जो गैसटा को एब्जॉर्ब करिया को चाहूच सेटा एब्जॉर्ब करैले से रेडिली एब्जॉर्ब हबो ऑलरेडी जदि अदर गैस मॉलिक्यूल्स गुड़ाक से एब्जॉर्ब होती प्लेस ऑक्युपाई कर देइचंती ताले तमे जो गैसटा को एब्जॉर्ब करिया को चाहूच तार एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शनटा कम हम जदि आमे से अननेसेसरी गैसेस गुड़ाक रिमूव न करिबा सेथिपाई सुपर हीटेड स्टीम पास करदेले जो अननेसेसरी जोड़ा अनडिजायरेबल गैसेस अच्छी एब्जॉर्ब होइकी प्रीवियसली से गुड़ाक पळेइबे तापरे द सरफेस इज नाउ फ्री टू रेडिली एब्जॉर्ब द गैस यू डिजायर तमे जो गैसटा को एब्जॉर्ब करिया को चाहूच से सेटा रेडिली एब्जॉर्ब हम है ताले दीज आर द थ्री मेन मेथड्स of increasing the absorbing power of an adsorbent which is called activation of adsorbent hala so these are the main 5 factors affecting the adsorption rate of adsorption or magnitude of adsorption of gases by solids one is nature of adsorbent and adsorbent nature of adsorbent temperature pressure and finally activation of adsorbent hala so now we will go to the next portion that is Freundlich adsorption isothermy है ताले जदि तुम क्वेश्चन रे 4 factors affecting adsorption पड़िला एनी 4 factors you will write that is of 2 marks जतले 4 factors पड़िबो the question will be of 2 marks जदि खाली name the factors affecting the adsorption of gases on जहाँ पड़िबो accordingly we can answer है आ तुम तो सिलेबस रे कैटालिसिस एंजाइम कैटालिसिस ये सब पर्सन गुड़ाक तुम डिलीट कर रिड्यूस कर इन जो रिसेंट 2020 सिलेबस रे तेणु से पर्सन आम स्किप कर खाली कैटालिस्ट इज पर्सन रे कैटालिस्ट टाइप्स ऑफ कैटालिस्ट आउ होमोजेनियस हेटेरोजेनियस कैटालिसिस सेतिकी आमे पढ़
So next, Freundlich adsorption isotherm. Hella. This is after the name of the chemist Freundlich adsorption isotherm. Applications of adsorption तुम तो जानी तुम ऑलरेडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ुच व्हाट आर द यूजेस ऑफ योर कैटालिस्ट इन डिफरेंट ऑर्गेनिक रिएक्शंस है स्पीड अप करने सब केस रे ऑलरेडी तुम एप्लिकेशन गुड़ाक सब जानीच तेणु नेक्स्ट फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म आइसोथर्म माने इंडिकेट करुच्ची कौन टेम्परेचर इज कन्स्टांट है आइसोथर्म माने टेम्परेचर कन्स्टांट ताले टेम्परेचर कन्स्टांट रखिकी प्रेशरटा एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस प्रेशर सांगे केमिति भेरी करुची गोटे रिलेशनशिप एस्टाब्लिश करथिले किए ना फ्रेंडलिक टेम्परेचर कीपिंग कांस्टेंट दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म हला ताले ही एस्टाब्लिश्ड एन एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेरिएशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एडजॉर्प्शन विथ प्रेशर है बुझीपाल से जो एम्पिरिकल रिलेशनशिप से एस्टाब्लिश कले तापरे ताको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कले से जो रिलेशनशिपटा दैट इज कॉल्ड फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म ताले ही एस्टाब्लिश्ड एन एम्पिरिकल रिलेशनशिप between the mass of gas adsorbed by unit mass of adsorbent at constant temperature है ताले ता रिलेशनशिप सेटा कौन थिला ता रिलेशनशिप बुझीपार क्या भीतर रिलेशनशिप एस्टाब्लिश कले मास ऑफ गैस एडजॉर्ब बाय यूनिट मास ऑफ एडजॉर्बेंट है बुझीपार ताले तांकर रिलेशनशिपटा कौन थिला ना x बाय m is equal to k p to the power 1 by n है x है amount of और mass of gas adsorbed m is mass of adsorbent p is pressure k and n are constants whose values depend upon
nature of adsorbent and adsorbent. धीरे धीरे तुम बुझीज रिलेशनशिपटा कौन बर्तमान खाली लेख x by m is equal to kp to the power 1 by n. x is mass of gas adsorbed, m is mass of the adsorbent, p is pressure, adsorption is taking place at pressure p, and n and k are constants. तार वैल्यू डिपेंड करुच्ची नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट आउ एडजॉर्बेंट ऊपर है बुझी पार. Then he plotted a graph taking x by m versus pressure. What is से बतन establish करबी relationship pressure संगे रे केमिति x by m टा vary करूची हैला. mass of gas adsorb vary करूची केमिति का संगे रे with pressure how it is varying हैला. ताले हमें देखिबा by plotting a graph. So now let us plot the graph. है एटा कौन है मास ऑफ गैस एब्जॉर्ब एक्स है मास ऑफ गैस एब्जॉर्ब एम है मास ऑफ द एब्जॉर्बेंट ताले वेरिएशन ऑफ योर मास ऑफ गैस एब्जॉर्ब विथ प्रेशर से गोटे ग्राफ प्लॉट कले ताले से ग्राफ रो नेचर केमती है से देखिले so this is your x by m is plotted in y axis and pressure in x axis. So this shows the how pressure affects the amount of gas adsorbed on the surface of your solid. ताले देखो वर्तमान तुम आगे स्टडी कर लो प्रेशर रे कौन होउची ना लो प्रेशर रे जेते बेले प्रेशर बढ़ाऊचे x by m रो वैल्यूटा बढ़ुची ये सर न प्रेशर बढ़िले x by m रो वैल्यूटा बढ़ुची तेणु एट लो प्रेशर x by m value is proportional to pressure. ताले हमें गोटे गोटे स्टडी करके जीवा एटा हला देखो लो प्रेशर एटा हला हाई प्रेशर एटा हला इंटरमीडिएट रेंज ऑफ प्रेशर ताले कोठी कोन होउची आमे वर्तमान देखिबा. ताले लो प्रेशर को आगे जीवा कोन कहली ना लो प्रेशर रे आमे जेते प्रेशर बढ़ौचे एडी प्रेशर थिले वैल्यू ऑफ x by m एठी थिला प्रेशर बढ़ै देले x by m वैल्यू एठी के बढ़ैला प्रेशर बढ़ैले एम्टी ताले कोन हला with increase of pressure extent of adsorption also increases है ताले लेखो at low pressure because the graph is a straight line माने कौन गोटे फैक्टर बढ़िले आ गोटे फैक्टर बढ़िबो सेइथिरे ग्राफटा कोन आसे स्ट्रेट लाइन आसे हैला ताले the at low pressure the graph is or plot is linear माने is a straight line which indicates that x by m is proportional to p at low pressure है ना नहीं प्रेशर बढ़िले x by m रो वैल्यू बढ़ुची दैट इज एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब बढ़ुची हैला. So x by m is proportional to p that implies x by m is equal to kp where k is a constant.
then at high pressure बर्तमान देख हाई प्रेशर रे कौन होउची द ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस ग्राफटा कौन स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस ताले जदि जेतेबेले पैरेलल हो जाए कहीं कहा ऊपर डिपेंड करे नहीं ये सर न जेतेबेले पैरेलल हो जाए ये कहीं कहा ऊपर डिपेंड करे नी ताले हाई प्रेशर रे तमर ये जो फ्रेंडली रिलेशनशिप दैट फेल्स at high pressure your x by m value is independent of pressure high pressure रे pressure बढ़ेले भी आउ extend ये जो saturation pressure यही value टा cross करी गले आउ pressure बढ़ेले भी extent of absorption x by m रो value बढ़िबो नाही हैला काहे कि ना ये दीटा कोन हे जाउछंती parallel हे जाउछंती ताले तांकर आइसोथर्म टा applicable up to your this saturation pressure है बुझ पार ताले लिखी दियो एट हाई प्रेशर द ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस सो x by m is independent of pressure at high pressure. Independent of pressure at high pressure. हला बुझ पाला लो प्रेशर रे लिनियर रिलेशनशिप प्रेशर बढ़िले x by m रो वैल्यू बढ़ुची हैला आ पूरा हाई प्रेशर रे नो रिलेशनशिप प्रेशर इनक्रीज कले आउ x by m रो वैल्यू बढ़ू नाही एटा कांस्टेंट हे कि चली बुझी पारलो तापरे आ गोटे आसिला कोन ए जो ए बी लाइन एटा इंटरमीडिएट रेंज ऑफ प्रेशर intermediate range of pressure ताले इंटरमीडिएट रीजन माने रेंज ऑफ प्रेशर माने ये जो ए बी ए रीजन एठी कोन होची देखो एठी भी प्रेशर बढ़ेले x by m वैल्यू बढ़ुची एठी लिखी दियो in intermediate range x by m value increases with pressure with a power raised in between 0 and 1 0 to 1 हैला ताले कौन हैला x by m is proportional to p to the power 1 by n लिखी दियो x by m is equal to kp to the power 1 by n the value of 1 by n lies between 0 to 1 हैला 1 by n रो वैल्यूटा 0 रु 1 भितरे भेरी करियो the value of n is greater than 1 हैला बुझ पारलो ताले दिस इज योर Fenwick adsorption isotherm which is valid only this is the limitations of your Fenwick adsorption isotherm limitation कौन ना it fails at high pressure ये जो रिलेशनशिप टा ये जो Fenwick adsorption isotherm टा एटा फेल करे कहीं कि ना एट वेरी हाई प्रेशर तमरो प्रेशर वेरिएशन x by m संगे किछि नाही x by m वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर हैला बुझ पारलो ताले एटा हला तमरो Fenwick adsorption isotherm so now the class ends here it is तमरो क्लास सरीला rest in the next class thank you all